કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું કવિતા 14 હમ ભારત કી શાન હૈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કવિતામાં આપણને ભારત દેશના ભવિષ્ય જે છે બાળકો તેના વિશેની વાત કરવામાં આવેલી છે। તો આપણે જોઈએ कि बच्चे देश का भविष्य है, એટલે કે જે નાના બાળકો છે એ ભવિષ્યમાં મોટા થવાના છે અને તે જે કરશે એ પ્રમાણે આપણા ભારત દેશની પ્રગતિ, તેનું માન મોભો જળવાઈ રહેશે। એટલે કે બાળકોને ભારત દેશનું શું કહેવાય છે? ભવિષ્ય કહેવાય છે। વે હમારે દેશ કી શાન હૈ, એટલે કે તેઓ આપણા દેશની શું છે? शान छे। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। એટલે કે અહીં આ કવિતામાં જે છે નાના બાળકો તે આપણને જણાવે છે કે તેઓ કેવા કેવા કામ કરી અને દેશને આગળ વધારશે। તો આપણને અહીં આપેલું છે કે બચ્ચે દેશ કી વિરાસત ઉનકે ઉપર ही નિર્ભર है, એટલે કે જે બાળકો છે તેના ઉપર આ દેશની જે વારસો છે, જે તેનો પ્રતિષ્ઠા છે તે તેમના ઉપર જ નિર્ભર છે। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करके वे देश को आगे बढ़ाएंगे, એટલે કે બાળકો કેવા કેવા સારા કામ કરશે, ખોટા કામ કરશે, જેવા પણ કરશે એવા, એના આધારે જ ભારત દેશની શાન એટલે કે પ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે। તો હવે જોઈશું આપણે આ જે ગીત છે, આ જે કવિતા, તેનું ગાન કરીશું। તો આપણે જોઈએ આ કવિતાનું ગાન। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हम है फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે આ જે કવિતા છે 14 હમ ભારત की शान है તેનું આપણે શું કર્યું? ગાન કર્યું। હવે જોઈએ આપણે તેનો ભાવાર્થ। તો અહીં આપણને પહેલી પંક્તિઓ આપેલી છે કે નન્હે નન્હે હમે ન સમજો, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। यानी कि हमें छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है। हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। એટલે કે અહીં જે આ બાળકો છે, એ જે કવિ છે, એ આપણને કહેવા માંગે છે કે અમને નાના નાના બાળકો ન સમજો, અમે ભવિષ્યમાં મોટા થઈશું અને તેને આધારે જ આ ભારત દેશની પ્રતિષ્ઠા અમારા કારણે જ છીએ। એટલે કે અમે આ ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ, અમારાથી જ આ આખી ધરતી ટકી રહેલી છે અને આ આકાશ પણ વિસ્તરેલું છે। આગળ જોઈએ। फूल है हम इस बगिया के,
खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम મહાન है। તો અહીં આ પંક્તિઓની અંદર આપણને કવિ જણાવે છે કે હમ इस उपवन के फूल है, हमारा काम खुशबू फैलाना है, हम महान काम करते हैं, इसलिए ये आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे कवि हमें बताते हैं कि અમે એટલે કે આજે નાના નાના બાળકો છે એ શું છે, બગીચાના ફૂલો છીએ। અમારું કામ શું છે, સુગંધ ફેલાવવાનું છે। અમે મહાન કામો કરીએ છીએ અને તેથી આગળને આગળ વધતા રહીશું। આગળ જોઈએ પંક્તિઓ। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो यहाँ पे कवि हमें बताते हैं कि हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है। तो कवि આપણને અહીં જણાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અમારે પ્રગતિ કરતા રહેવાની છે। અમારે એટલે કોને, નાના બાળકોને। હંમેશા આગળ વધતા રહેવાનું છે। અમે આગળ વધતા રહીશું, ક્યારેય અટકીશું નહીં, કારણ કે અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ। તો અહીં આ કાવ્યની અંદર આ નાના બાળકો છે તે પોતે આ ભારત દેશની પ્રતિષ્ઠા, શાખ અને આબરૂ છે તે પ્રમાણે આપણને અહીં સમજાવેલું છે। તો અહીં આપણને કેટલાક શબ્દોના અર્થ આપેલા છે કે આપણને આપ્યું છે કે શાન, શાન यानी कि प्रतिष्ठा, गौरव। आसमान, आकाश। बगिया, छोटा सा बगीचा, उपवन। खुशबू यानी कि सुगंध। खुशबू फैलाना જે મુહાવરો છે આપણે જેને ગુજરાતીમાં રૂઢિપ્રયોગ કહે છે, તો खुशबू फैलाना यानी कि प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ऊंचे उठना यानी कि प्रगति करना, उन्नति करना। આ પ્રમાણે આપણે આ કવિતાની અંદર શું સમજ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કવિતાની અંદર આપણે સમજ્યા કે કવિ આપણને જણાવે છે કે હમે छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और आसमान भी फैला हुआ है। हम इस उपवन के, इस बगिया के फूल है। जिस तरह यह फूल खुशबू फैलाने का काम करता है, उसी तरह हम भी ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी खुशबू फैलाने का काम करेंगे। हम महान काम करते हैं, इसलिए आगे ही आगे दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है, और बढ़ते बढ़ते हमें कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि हम भारत की, अपने देश की शान और प्रतिष्ठा है। तो આપણને અહીં આ કવિતાની અંદર કવિ અલગ અલગ જે છે બાળકો તેના વિશેની વાત કરેલી છે કે અમને નાના ન સમજો, અમે ભારતની પ્રતિષ્ઠા છીએ અને અમારા કારણે જ આ આખી ધરતી અને આકાશ છે। અમે બગીચાના ફૂલો છીએ, જેમ તે સુગંધ ફેલાવાનું કામ કરે છે તેમ અમે પણ આ દેશની અંદર સુગંધ ફેલાવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ અને ઊંચા ઊંચા મહાન મોટા મોટા કાર્યો કરીને હંમેશા આગળને આગળ વધતા રહીશું। અમે પ્રગતિ કરતા રહીશું અને કોઈને પ્રગતિ કરતાં કરતાં ક્યારેય અટકીશું નહીં। કેમ? કારણ કે અમારાથી જ આ ભારત દેશની પ્રતિષ્ઠા અને શાખ જળવાઈ રહેશે। તો આપણે કાવ્યનું ગાન અને તેનો ભાવાર્થ જોયો। હવે જોઈએ આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ શબ્દાર્થ। શબ્દાર્થ છે બગીચા यानी कि बगीचा, शाख प्रतिष्ठा, खुशबू यानी कि सुगंध, आसमान यानी कि आकाश। आगे है अभ्यास।
अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो ઉદાહરણ આપેલું છે આપણને અહીં કે આસમાન, તો આસમાન શબ્દથી આપણે અહીં વાક્ય બનાવવાનું છે કે જેનું વાક્ય છે કે બાદલ આસમાન में छाए है, બાદલ આકાશ में छाए है। તો એ જ પ્રમાણે આપણને પહેલા નંબરમાં આપેલું છે ધરતી, તો ધરતી પર હરિયાળી છા ગઈ। તો એનું બીજું વાક્ય બનશે તો ધરતીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાયવાચી શબ્દ સમાનાર્થી શબ્દ કયો થાય તો પૃથ્વી। તો આપણે વાક્ય બનાવીશું પૃથ્વી પર હરિયાળી છા गई। बगीचा, तो वाक्य है बगीचे में गुलाब के फूल है। तो आगे वाक्य दूसरा होगा कि बगिया में गुलाब के फूल है। शान, बच्चे देश की शान है। और नया वाक्य बनेगा कि बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। प्रश्न नंबर 2 अ, इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो આપણે જોઈએ અની અંદર જે જવાબ આવે તે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે જો આ દેશના નાના બાળક છો તો આ દેશની પ્રતિષ્ઠા માટે તમે શું શું કરી શકો। તો તેનો જવાબ આ પ્રમાણે થાય कि मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों जो तमे અહીં આ દેશની પ્રતિષ્ઠા આબરૂ વધારવા માગતા હોય, તેની તરક્કી કરવા માગતા હોય તો તમે શું કરી શકો? તો નિયમિત સ્કૂલ જઈશું, સારી રીતે ભણીશું, સારા વ્યવહાર શીખીશું, સ્કૂલ, શેરીઓ, સોસાયટીઓ વગેરેની સફાઈનું ध्यान રાખીશું, મોટા થઈને સારા નાગરિક બનીશું, દેશના સાથે ક્યારેય ગદ્દારી નહીં કરીએ અને દરેક જે આ દેશની સાર્વજનિક સંપત્તિ છે તેનું શું કરીશું આપણે રક્ષણ કરીશું। તેની અંદર જ છે બ कि सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। એટલે કે આપણે આ દેશની સેવા કઈ કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ। તો તેનો જવાબ શું હોઈ શકે कि हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं, आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। तो અહીં આપણને આપેલું છે કે આપણે આ દેશની સેવા કઈ કઈ રીતે કરી શકીએ। તો આપણે શું કરીશું? સારા વિદ્યાર્થી બનીશું, સારી રીતે ભણીશું, આપણી આજુબાજુ આપણા શહેરની સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખીશું, મોટા થઈને સારા નાગરિક બનીશું, પૂરી નિષ્ઠાથી આપણે જે હોદ્દા ઉપર હઈએ આપણી જે ફરજો છે તે બધી જ નિભાવીશું અને દેશના વિકાસમાં સંપૂર્ણ યોગદાન કરીશું, પૂરેપૂરો ફાળો આપીશું। प्रश्न नंबर 3, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो आपणे जे आ कविता समझ्या कि हम भारत की शान है तेनुं शुं करवानुं छे? અહીં આપણે ગાન કરવાનું છે, જે આપણે આ વિડીયોની શરૂઆતમાં કર્યું। તો એ પ્રમાણે તમે પણ ગાન કરી શકશો। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। तो અહીં આપણને આપેલા છે વાક્યો, તેના ઉપર જે લીટી દોરેલા છે શબ્દો છે તેના ઉપર આપણે ભાર દેવાનો છે અને તેના વાક્યોને વાંચવાના
છે. पहलू छे मेरा विद्यालय सुंदर है। मेरा यानी कि मेरा ही विद्यालय सुंदर है और किसी का नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है तेनो अर्थ थाय छे कि मेरा विद्यालय ही सुंदर है और कोई स्थल नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है એટલે કે તેનો અર્થ થાય कि मेरा विद्यालय सुंदर ही है, खराब नहीं है। दूसरा, अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यानी कि अंबाजी में माताजी का मंदिर है और किसी जगह नहीं। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है यानी कि माताजी का ही मंदिर है, किसी और देव का नहीं। अंबाजी में माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है यानी कि बहुत बड़ा, छोटा नहीं। આપણે અભ્યાસ વિશે સમજ મેળવી. હવે જોઈશું આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है भारत माता की शान कौन है? तेनो जवाब छे कि बच्चे भारत माता की शान है। दूसरा प्रश्न, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो जवाब है बगिया में फूल खुशबू फैलाता है। तीसरा प्रश्न, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो जवाब है हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, हमारे देश का भविष्य कौन है? तो जवाब है बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो આપણે સ્વાધ્યાય વિશે પણ સમજ મેળવી. હવે આપણને નીચે આપેલું છે कि योग्यता विस्तार। पहचान कर नाम लिखिए और उनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो આપણને અહીં 10 વ્યક્તિઓના ચિત્રો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ દરેક ચિત્રની અંદર કયા વ્યક્તિ છે, કોણ છે તે આપણે ઓળખવાના છે અને તેમની વિશે 2-4 વાક્યો લખવાના છે. તો સૌ પ્રથમ આપણને આ પહેલું ચિત્ર આપેલું છે તેમાં કોણ છે? અમિતાભ બચ્ચન. તેમને તો તમે બધા જ ઓળખતા હશો, બરાબર? તો તેમના વિશે આપણે શું કહી શકીએ? तो अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उन्हें पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं। अमिताभ जी ने अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है। आगे है लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर ने तमे बधा ज ओळखता हशो। ते कोण छे? गायक छे। तो तेना विषे आपणे जोईए तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। लता जी की आवाज में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय नाम की एक संस्था की स्थापना की है। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले हैं। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए हम सब से दूर चली गई, यानी कि उनका देहांत हो गया। आगे है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो वह हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले
अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की है। आगे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। उनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे कौन हैं? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी आत्मकथा का नाम है अगन पंख। आगे है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल यानी कि हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी और फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आगे है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाना जिले के वतनी हैं। सुनीता 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला थी। पहली कौन थी? कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स। उन्होंने ह्यूमन लाइफ, साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में काम किया है। आगे है पीटी उषा। वह भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। वे उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। आगे है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत के महान क्रिकेटर हैं। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। आगे है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन है? भारत की बैडमिंटन स्टार है। उनके पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी दूरी पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई में भी अच्छी तरह कर लेती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से रुपया 600 मासिक मिलते थे। तो અહીં આપણે આજે 10 મહાન વ્યક્તિઓ છે તેમના વિશે ચર્ચા કરી। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સૌપ્રથમ આપણે કવિતાનું ગાન કર્યું, ત્યાર પછી તેનો ભાવાર્થ એટલે કે સમજૂતી સમજ્યા, શબ્દાર્થ અર્થ, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશેની સમજૂતી મેળવી। તો આ બધી જ વિગત તમને PDF સ્વરૂપે મોકલવામાં આવશે, જે તમારે નોટબુકની અંદર લખવાની રહેશે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? થેન્ક યુ।